Okay. Yes. So today we will study about HMIS, what is Health Information System, or it can also be said Health Information System or Health Management Information System. Sometimes it can be asked in such a way, Health Management Information, HMIS and HIS, both are the same things. Health information systems, if we talk about, means everything, the data we collect, the system we design, it is only for the hospital management information system. Means hospital related problems we are going to solve here with the help of technology or with the help of computer system. What is HMIS? It is a designed system designed to collect, analyze, and manage health related data to support planning, management, and decision making in healthcare sectors. Means in healthcare sectors, if you want to use the technology, you want to set up the MIS, it means it will help you to collect data, analyze data, manage data. What kind of data? Health related data in a hospital, right? So this is health information system or health management information system. See what the definition is written here. A health information system, HIS, is broadly defined as a system that integrates data collection, processing, reporting, and use of the information necessary for improving health services effectiveness and efficiency through better management at all levels of health services. It is a kind of management system, means how to manage a hospital. If you are using technology in your hospital, if you're using different software system in your hospital, as we earlier learned about ERP system, right, enterprise resource planning for the hospital, then you have to set up an HMIS, right? HMIS is a term which is defined as this is all the data related queries or informations or systems analysis, what is the process is going on the hospital, all this can be handled with the help of computer systems and technology or information systems, means softwares related softwares are there to help you. That is called health information system or health management information system, right? If you're going with the technology, means it is managing. What does the HMIS do? The HMIS is a better managementing tool. You can say it's a managementing tool for decision making, right? In any organization, if a tool is there, a software tool is there which help you or which help or assist you in taking any decisions on any level. As I explained you, there are three levels in any organization. There is upper level, middle level, lower level. If any software system is there which is supporting you, which is assisting you for taking the decisions, right? For creating some policies, implementing how to implement these policies, how to do the operation work for implementing these policies. So that time, if any a software system is assisting you, a management tools you have, you are using that tool. So this is called health information system if it is specifically related to any hospital, right? HMIS का मतलब यहाँ पर है हॉस्पिटल के लिए जो आप MIS क्रिएट कर रहे हो. MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, पहले MIS समझते हैं हम. MIS क्या होता है? MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कैसे आप मैनेज कर रहे हो. जो डेटा आपके पास आ रहा है, जो डेटा कलेक्शन आपके पास हुआ है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने में क्या क्या प्रोसेसेस लग रही हैं आपकी, क्या आपके प्रोसेसिंग मैनेजमेंटिंग टूल है, इन सबको कलेक्टिवली जहां पर आप यूज कर रहे हो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो इनका यूज करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की. और स्पेशली यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स, ठीक है. तो हेल्थ केयर सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज कर रहे हो, और उसके थ्रू आप कोई डिसीजन ले पा रहे हो, क्विक डिसीजन ले पा रहे हो, मैनेजमेंट आप प्रॉपर कर पा रहे हो, एक बेटर एफिशिएंसी दे पा रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको ही पूरे मॉड्यूल को हम HMIS बोलते हैं, राइट.
This is an HMIS tool. So what is the means if we go to the breakdown of HMIS, और अगर हम सिंपल मॉड्यूल्स में बात करें, पॉइंट्स में बात करें, तो HMIS होता किस चीज के लिए है? डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट के लिए होता है. सिंपली पहली बात कि डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट इसके थ्रू होगा. जितना भी डेटा आप बाहर से लेकर आ रहे हैं वो सारा डेटा कलेक्शन. डेटा बाहर से लेके आने का मतलब क्या है? एक हॉस्पिटल में डेटा कैसे बाहर से आता है? एक पेशेंट अगर आपके यहाँ रजिस्टर्ड होता है तो वो भी आपका डेटा है, राइट? बाहर से पेशेंट आया, रजिस्टर्ड हुआ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपने कहीं पे स्टोर करी, जैसा कि हॉस्पिटल्स पे होता है. एंट्री पे, रिसेप्शन पे फॉर्म फिलअप कराया जाता है, एंट्री कराई जाती है, पेशेंट की सारी डिटेल कलेक्ट की जाती है, तो वो डेटा कलेक्शन है, राइट? और उसकी फाइनेंशियल डिटेल कलेक्ट करना, उसका रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना, पहले कब आया था, अब कब आया था, तो ये सारा डेटा कलेक्शन का काम होता है. तो डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट का प्रॉपर सारा काम आपका HMIS के अंदर होगा, ठीक है? और क्या होगा? इम्प्रूव, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा ये. अगर आप इसको पॉइंट्स वाइज दें तो डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट का काम होगा, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि डिजिटाइज कर रहे हो आप सारी चीजों को. डिजिटाइज करने का मतलब है सारा डेटा कलेक्शन आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पे हो रहा है. फाइलें आपने रिप्लेस कर दी हैं, तो जब सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम आपका फाइलों से हटके किसमें हो रहा है? आपके कंप्यूटर्स पे सिस्टम पे हो रहा है, तो सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड भी रहता है. सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जगह पर वो सारा डेटा होगा, तो एक्सेस करना इजी हो जाएगा, ऑपरेट करना इजी हो जाएगा, काम आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ठीक है? मैनुअल प्रोसेस यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है आपकी, और एरर्स भी कम हो जाती है आपकी. तो ये सारी हमको क्या मिलती है? फैसिलिटी होती है, जिससे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट वी कैन सी इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इज देयर. एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है, राइट? एंड पेशेंट केयर के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, पेशेंट केयर के लिए मीन्स HMIS जो है बेसिकली पेशेंट केयर के लिए हम लोग यूज करते हैं. कितना अच्छा पेशेंट को केयर दे, जितनी अच्छी केयर आपके हॉस्पिटल पेशेंट की करेगी, आपका हॉस्पिटल की एफिशिएंसी उतनी अच्छी मानी जाती है, isn't it? तो HMIS can improve patient care by providing quick access. आपको आप कैसे क्या प्रोवाइड कर रहे हो आपको पेशेंट को? जब आप क्विक एक्सेस पेशेंट को प्रोवाइड करते हो, डायग्नोसिस में क्विक एक्सेस, या फिर उसके ट्रीटमेंट में क्विक एक्सेस, और उसकी जो प्रोसेसिंग में क्विक एक्सेस, तो वो क्विक एक्सेस, उसके रिकॉर्ड जनरेट करने में क्विक एक्सेस, ठीक है? क्विक एक्सेस का मतलब है आप जो भी काम पेशेंट उस हॉस्पिटल पे कर रहा है, अगर वो काम क्विकली हो जाता है, क्विक एक्सेस पे हो जाता है, तो ऑफ कोर्स आप ऐसे हॉस्पिटल को क्या मानोगे? एफिशिएंट मानोगे. लेकिन अगर ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ 1 दिन 2 दिन तक फाइलें ही चल रही हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि मैं कब डिस्चार्ज होऊंगा, कब मेरी रिपोर्ट बन के आएगी, कब मुझे एंट्री मिलेगी, कब मैं रजिस्टर्ड होऊंगा, तो वहाँ एफिशिएंसी डिग्रेड होती है. और जहाँ एफिशिएंसी डिग्रेड होती है तो वो हॉस्पिटल क्या होता है? आगे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है. बिकॉज टुडे इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम सारा कुछ जो ये पढ़ रहे हैं ये टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखते हुए पढ़ रहे हैं, एफिशिएंसी को दिमाग में रखते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन फ्रॉम HMIS मींस जो अपन हम इंटरचेंजेबली करते हैं ना, मतलब सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशंस के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हमारे होते हैं, जैसे हमने ERP में आपको बताया था, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं एक एंटरप्राइज के लिए. इसी तरीके से HMIS को सेटअप कर रहे हैं, तो वहां भी आपके हॉस्पिटल में अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उन सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या है? आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है? बट एक सेंट्रलाइज बनाना, उन सबको कनेक्ट करना, इंटरएक्टिविटी बनाना, ये सारा आपका HMIS का काम है. मतलब HMIS एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो अपने अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स को लेके रखता है और एक सेंट्रलाइज्ड वे पे काम होता है. अब ERP जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे, ERP का ही एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि हमारे पास HMIS है जो स्पेसिफिकली हम हॉस्पिटल के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज कॉल्ड HMIS. So why is a well functioning HMIS important? अगर आपने HMIS सेटअप ही किया है तो sometimes these questions can arise कि why well functioning जरूरी है. HIS तो क्रिएट कर दिया आपने या HMIS तो क्रिएट कर दिया, पर well functioning बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर पाए आप, तो आप कितने सॉफ्टवेयर सिस्टम सेटअप कर लो, कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आप लगा लो, अगर उसकी वेल फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, आपको क्विक एक्सेस पेशेंट को नहीं मिल पा रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो पा रही है हॉस्पिटल्स की, तो वो फिर आपका इट्स यूजलेस. So understanding the progress of the health of populations and the performance and quality of healthcare sectors requires the ability
to monitor individuals over time. तो इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. इट इज सेइंग दैट किसी भी हेल्थ HMIs जहां भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, भले गवर्नमेंट सेक्टर्स में कर रहे हो या फिर आप अपनी नेशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हो कि हम हर जगह से HMIs क्रिएट करेंगे, पेशेंट हमारा जो है वो बहुत एफिशिएंसी उसको मिलेगी, तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव होगा. हेल्थ सेक्टर आपने बोल दिया इम्प्रूव होगा, बट उसकी मॉनिटरिंग, उसको वेरीफाई कौन करेगा? जब आप उसको मॉनिटरिंग, इंडिविजुअल से मॉनिटरिंग करके जब पता चलता है, जैसे हम अपनी कंट्री पे ले लो, अगर आपके पास इंडिविजुअल सर्वे के साथ अगर आप बोलते हो कि सारे जितने भी लोगों से हमने सर्वे किया, तो लोगों ने बोला कि अब हमारे जो है कंट्री के हॉस्पिटल्स बहुत ही एफिशिएंट हो चुके हैं, हमें क्विक एक्सेस मिल रही है, पहले ऐसा होता था, अब तो बहुत अच्छा हो गया, तो वहां से आपको एक फीडबैक मिलता है. ठीक है, तो वो फीडबैक बहुत जरूरी होता है ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या आपका हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम टेक्नोलॉजी से, या फिर नहीं हो रहा है. राइट, तो द मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ओवर टाइम, टाइम टू टाइम. As they experiences healthcare events, receive treatments and experience improvement or deterioration. तो कौन ये बताएगा आपको? पेशेंट ही बताएगा. जो भी पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, टाइम टू टाइम ऐसे पेशेंट, ऐसे इंडिविजुअल पर्सन से सर्वे किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, या एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल अपने खुद के पेशेंट्स को मॉनिटर करता है, उससे पूछता है, देखते हैं तो क्या डिफरेंसेस निकले हैं, ये आपसे पूछा जाता है. तो उस केस में अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज अगर आपको बेटर बताया जा रहा है, मीन्स अगर आपसे कोई ये बोलता है कि आप जो है नहीं, हम तो यहाँ के बहुत ऐसा हो गया टेक्नोलॉजी में, तो जो है आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा होती है, या फिर कह सकते हो कि हम लोग तो इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि कहने का मतलब है कि ज्यादा हमारी फॉर्मेलिटी ज्यादा हो रही है और हमको उसका बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है. तो वहां पे फिर उस केस पे आप ये देख सकते हो कि आपका जो है वो चीज प्रॉपर नहीं हो रही है. ये प्रेजेंटेशन स्लाइड विजिबल है और नहीं है? आई डोंट नो. इज इट विजिबल माय स्टूडेंट्स? अगेन आई एम प्रेजेंटिंग द स्लाइड, जस्ट वेट. Just wait, I'm presenting the slide. Right? तो उस केसेस पे आप ये कह सकते हो, the basis of that monitoring, you can check whether your organization is going to for better efficiency, or whether it is going for any deteriorations, or you need इम्प्रूवमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये टाइम टू टाइम मॉनिटर भी यहाँ पर किया जाता है. तो यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिविजुअल ओवर टाइम एज दे एक्सपीरियंस हेल्थ केयर इवेंट्स, बिकॉज इंडिविजुअल ने जिसने एक्सपीरियंस किया है हेल्थ केयर इवेंट्स को, उससे आप मॉनिटर करके रिसीव ट्रीटमेंट्स, उसके ट्रीटमेंट्स को रिसीव कर सकते हो, एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट ले सकते हो, और डिटोरिएशन हो रहा है तो वो भी हेल्थ केयर में आप यहाँ पे चेक करते हो. तो उससे आपको पता चल जाता है कि वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन और योर हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वेदर इट इज गोइंग वेल और नॉट. सो हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो HIT टर्म जो होती है, दैट इज हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दीज टर्म यूज, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज ये भी सेम है, और आपसे पूछा, और हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी वही है. मतलब ये सारा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज आप स्पेसिफिकली एक हॉस्पिटल के लिए कर रहे हो, सो दैट हॉस्पिटल को की एफिशिएंसी बढ़े, राइट, डेटा कलेक्शन पे इम्प्रूवमेंट हो, एफिशिएंसी बढ़े, क्विक एक्सेस हो पेशेंट्स को, और उसको मॉनिटर करके आप ये कह सके कि हेल्थ केयर सेक्टर्स बेटर हो रहे हैं, ये हमारा हॉस्पिटल बेटर हो रहा है विद द यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर है, जो क्विक एक्सेस प्रोवाइड करेंगी आपके
हॉस्पिटल्स को। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन होती है आपकी HMIS की डेफिनेशन, व्हाट इज हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यू विल राइट इन सच अ वे। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, वी विल स्टडी वन बाय वन। फ्यू एग्जांपल्स आर देयर। To public health officials, right? Everybody can use these kind of software systems. What do? They collect data and compile it in a way that can be used to make healthcare decisions. Means data इस तरीके से collect होता है information systems में और store होता है so that आगे वो decision making के लिए use हो पाए, right? Decision making किसी भी level की हो सकती है। फिर मैं जब भी मैं डिसीजन मेकिंग बता रही हूँ आपको, तो मैं बार बार आपको 3 लेवल्स बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वेदर इट इज एन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन और कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो 3 लेवल्स स्पेसिफिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। दैट इज अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अपर होता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज आने के लिए, प्लानिंग करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की। मिडिल लेवल होता है जिसे मैनेजरियल लेवल भी हम बोलते हैं, वो उन्हीं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसीज, वो मैनेज करता है। और थर्ड लेवल जो ऑपरेशनल लेवल होता है, वो एक्चुअल में काम करता है। जब उसको पता, जब मिडिल लेवल से इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस आ जाती है कि ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारा शेड्यूल बना देता है मैनेजरियल लेवल, तो ऑपरेशनल लेवल फिर अपना काम करता है, राइट? तो ये 3 लेवल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं, वेदर यू टेक एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो हॉस्पिटल पे भी 3 लेवल्स होंगे ऑफ कोर्स। तो अगर इन तीनों लेवल में किसी भी तरीके का डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट और कंपाइल कर रहे हैं, वो इस तरीके से करेंगे कि इन तीनों लेवल्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल पाए। ठीक है, कैसे? सी व्हाट इज द एग्जांपल। आपने डेटा कलेक्शन किया और इस तरीके से नहीं किया कि पर्टिकुलरली आपने सारा डेटा एक जगह इकट्ठा कर दिया, दिस इज, आपने बोला डेटा कलेक्ट हो गया। नो, दिस इज नॉट अ वे टू कलेक्ट डेटा, राइट? डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करना होता है आगे की प्लानिंग के साथ से, सो दैट इसको यूज किया जाएगा किसी भी लेवल, कोई भी लेवल से यूज करके आगे को डिसीजन लेने में इसको हेल्प मिलेगी। तो आप डेटा को उस तरीके से कलेक्ट कीजिए, जैसे सपोज आपने डेटा कलेक्ट किया, एक स्पेसिफिक फील्ड का डेटा एक जगह रखना है, कुछ स्पेसिफिक इवेंट हुए हैं उसका डेटा आपको अलग रखना है, ठीक है? डेटा को एक की प्रोवाइड करनी है, ठीक है? हाईएस्ट कौन सा डायग्नोसिस हॉस्पिटल से रिलेटेड है कुछ, वो उसको की के साथ अलग जोड़ के रखना है। मतलब आपको कुछ ऐसे डेटा को सिंक्रोनाइज करके कलेक्ट करके रखना है सो दैट उसका एक्सेस प्रॉपर हो पाए, ठीक है? उसका प्रॉपरली एक्सेस होगा तो है डिसीजन मेकिंग में होगा। जैसे आप चार्ट्स बना के रख सकते हो, एक दिखा सकते हो कि भाई अभी इस टाइम का लास्ट मंथ का जो हमारा, जैसे सेल्स का डेटा रखना है आपको, लास्ट मंथ की सेल्स हमारी इतनी हुई है, आप एक ग्राफ में दिखा सकते हो, इस सेक्शन का इतना हुआ, इस सेक्शन का इतना हुआ, इस सेक्शन का इतना हुआ। या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड देख सकते हो, आपकी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें इतने पेशेंट ने विजिट किया, इसमें इतने ग्राफ बना दिए, तो पता चल जाता है इस लास्ट मंथ जो है हमारे हार्ट के पेशेंट्स को ज्यादा आए हैं, तो उसका ग्राफ जो होगा ज्यादा होगा, जैसे ग्राफ बनाना मैंने सीखा। तो आपको इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करके रखना, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स करेंगे काम, राइट? बस उसको ऑपरेट करने वाले प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो उस तरीके से डेटा को कलेक्ट करके आप रखेंगे, कंपाइल करेंगे, तो वो आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, राइट? आप विद इन ए क्लिक आप देख सकते हो लास्ट मंथ का क्या सेल का मेरा प्रोसीजर है, हाईएस्ट क्या है। यू जस्ट बाय क्लिकिंग वन क्लिक और आपके पास एक पिक्चर आ जाएगा, बस उस पिक्चर के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो और कोई डिसीजन ले सकते हो कि राइट, जैसे कि भाई हमारा जो है हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा विजिट हो रहे हैं, तो हमें इस पर इस डिपार्टमेंट या इस सेक्शन पे थोड़ा सा फोकस करना है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा काम करना होगा इस मंथ, ऐसा है या वैसा है। कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान कर लेगा अपर मैनेजमेंट अपने आगे के 6 मंथ के लिए, और ये विद इन ए क्विक मोमेंट में करना होता है। नाउअडेज कंपटीशन इज वेरी हाई, इजंट इट? सो तभी तो आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो ना, तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर क्विक एक्शन लेगी, टाइम के हिसाब से चलेगी, एनवायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लेके अपना काम करेगी, तो यू विल ऑफ कोर्स बी बेनिफिटेड। और उसके लिए क्विक डिसीजन लेने के लिए क्विक डेटा होना चाहिए आपके पास, डेटा एनालिसिस के लिए काम आता है। और क्विक डेटा होने के लिए अगर आपके पास HMIS इस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ये हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी
ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट? तो यहाँ पर इस पूरे का समझाने का ये मतलब है। तो एग्जांपल्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज द नेम्स ऑफ EMR, EHR, these are the softwares. The name is there: electronic medical record, electronic health record, electronic medical record and electronic health record. ये क्या है? ये आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। तो these two terms are almost used interchangeably, means EMR और EHR एक ही चीज है, मेडिकल रिकॉर्ड और हेल्थ केयर रिकॉर्ड एक ही चीज। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है जिसमें आप डिजिटलाइज कर देते हो अपनी सारी चीजों को, मतलब सारा रिकॉर्ड जो भी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में स्टोर है जिसे हम बोल रहे हैं EMR, मतलब उस सॉफ्टवेयर में आपको सारा मेडिकल रिकॉर्ड मिलेगा, या EHR में वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलेगा। मींस द इलेक्ट्रॉनिक medical record replaces the paper version of a patient's medical history. The electronic health record includes more health data, test results and treatments. क्या होगा इसके अंदर? ये सब चीजें होंगी, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, उसका हेल्थ केयर का डेटा, हेल्थ डेटा, रिजल्ट्स, जितने भी टेस्ट करे आपने, ट्रीटमेंट्स क्या क्या थे उसके, सारा कुछ रिकॉर्डेड है। It also is designed to share data with others, electronic health records, so other healthcare providers can access a patient's healthcare data. तो ये जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि रिकॉर्ड भी रखेंगे अपने डेटा को, और जब शेयर करने की टर्म आएगी एक्सेस के साथ, अथॉरिटी अगर ऑथोराइज्ड पर्सन है तो उसको उस डेटा को शेयर भी किया जा सकता है, राइट? शेयर करेंगे तो वो भी क्विक इससे एक्सेस कर उसकी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को क्विक एक्सेस करके आगे डायग्नोस भी क्विक होगा। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज एक पेशेंट ने ट्रीटमेंट किया एक सेक्शन पे, अब उसको ट्रीटमेंट करना है, एक सेक्शन पे ट्रीटमेंट किया, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से उसको ट्रीटमेंट किया, उसने उस हॉस्पिटल से विजिट की, तो उसका सारा मेडिकल डेटा रिकॉर्ड्स EMR या EHR में रिकॉर्डेड है, और सेइंग दैट कि आई हैव सफरिंग फ्रॉम सम अदर प्रॉब्लम्स नाउ, तो दूसरे सेक्शन में भेजा जाता है। तो जब दूसरे सेक्शन में भेजा जाएगा, अब वो हार्ट से रिलेटेड नहीं, उसको कोई न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, पर उसकी मेडिकल हिस्ट्री में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थी जो उसने डायग्नोस कराई है अभी। तो जब न्यूरो के पास आप जाओगे या किसी और के पास, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल्स, तो ही विल आस्क यू फॉर द मेडिकल हिस्ट्री। अब आपसे पूछेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इट कैन बी फाइंड आउट, उस मेडिकल, उस पेशेंट का एक नंबर होता है, उसकी आईडी होती है, सेम हॉस्पिटल है तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट अगर अलग हॉस्पिटल भी होता है ना, तो भी हेल्थ केयर EMR EHR से वो रिपोर्ट निकाल ली जाती है, उसकी पास्ट हिस्ट्री। और अगर पास्ट हिस्ट्री क्विक निकाली जाएगी तो क्विक डायग्नोस शुरू हो जाएगा। क्विक डायग्नोस शुरू हो जाएगा तो डिले, अननेसेसरी डिले नहीं होगा। अननेसेसरी डिले नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि पेशेंट्स, जब मेडिकल की में बात आती है, मेडिकल में अगर टाइमली कोई ट्रीटमेंट हो जाता है तो वही एफिशिएंसी है, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ओनली, राइट? तो वहां से एफिशिएंसी फिर बढ़ जाती है। तो ये आप कह सकते हो दिस इज अ बिग और ग्रेट हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर वर्किंग नाउअडेज इन एनी हॉस्पिटल सिस्टम। आप सारे हॉस्पिटल में ले लो, इस तरीके के सॉफ्टवेयर से उनका खुद का अपना सॉफ्टवेयर, खुद का अपना ERP सेटअप, ये सारा होता है जिसके थ्रू आज वर्किंग इफिशिएंटली हो रही है, राइट? तो ये EMR और EHR हॉस्पिटल्स का एग्जांपल्स यू कैन गिव व्हाइल गिविंग देम एग्जांपल्स ऑफ हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज मास्टर पेशेंट इंडेक्स। दीज आर द नेम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, might be some softwares are working the same work, but these are the names of the software which are using, which are frequently hospitals are using these softwares, right? Next is master patients index, that is MPI. What is MPI? Master patient index connects separate patient records across databases. See, databases are what? Where data stores. These are called databases. Databases भी अपना एक काम कर रहे हैं। जा, तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली में वो डेटाबेस से ही कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे डेटाबेसेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने सारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कहीं ना कहीं इकट्ठा किया हुआ है, वो डेटाबेसेस हैं आपके।
अब आपके इन सॉफ्टवेयर को जब डेटा चाहिए तो दे विल आस्क फ्रॉम द डेटाबेसेस, और उन डेटाबेसेस में भी डेटा बहुत सिंक्रोनाइज्ड और टर्म इस तरीके से स्टोर्ड है, एक एनालिटिकल वे पे स्टोर है, सो दैट आप उनको नॉर्मलाइज्ड वे पे और आप उनका एक्सेस कर सकते हो। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके पेशेंट रिकॉर्ड्स के, ये कनेक्ट होते हैं उन डेटाबेसेस से, और whenever they need the data for the specific purpose, they ask the data from these databases, right? So master patient index is what? It connects separate patient records across databases. Now here index word, just focus on the index word. Index means indexing is given over here, right? एक indexing मिली हुई है और उस indexing के through patients को जोड़ा हुआ है। Indexing क्या होती है ना? See, suppose in a college, a student is having a roll number. On the basis of that roll number, university roll number, university enrollment number, on the basis of that number, हम उसके स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को स्टोर कर लेते हैं डेटाबेसेस में। उसका जो भी रिकॉर्ड है, उसका जो भी अभी तक की हिस्ट्री, जो मार्क्स आए हैं, उसकी एड्रेस है, फोन नंबर है, कोर्स है, व्हाटएवर, ठीक है, उसको सारा हम उस इंडेक्स पे स्टोर कर देते हैं, और इंडेक्स में जो की होती है हमारी रोल नंबर होती है। तो उस हिसाब से जब भी हमको जरूरत होती है तो हम उस डेटाबेसेस से उस की के अकॉर्डिंगली उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो उसी तरीके का यहाँ पे अगर पेशेंट को एक इंडेक्स नंबर मिलता है और उस इंडेक्स नंबर के ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडेक्स नंबर डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाता है, तो उसको फिर हम जो कनेक्ट कर देते हैं एक सॉफ्टवेयर से, ऐसे सॉफ्टवेयर को मास्टर पेशेंट इंडेक्स बोलते हैं। वहां पे हर एक सेपरेट पेशेंट का रिकॉर्ड होता है उस डेटाबेसेस के अंदर, और एक इंडेक्स नंबर के साथ। The index has a record for each patient that is registered at a healthcare organization, और ये healthcare organization में registered होता है। Same just like your enrollment number registered होता है आपकी यूनिवर्सिटी में। जिस यूनिवर्सिटी से भी आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपको एक एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड होगा, वो एनरोलमेंट नंबर रजिस्टर्ड होगा उस यूनिवर्सिटी पे। सेम वे हियर, ये इंडेक्स नंबर जो पेशेंट को प्रोवाइडेड है, ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड होगा, राइट, एंड इंडेक्सेस ऑल अदर रिकॉर्ड्स फॉर दैट पेशेंट, और उस पेशेंट के लिए जितने भी रिकॉर्ड्स उसके अभी तक के हैं, मेडिकल हिस्ट्री जो भी है उसकी, वो उस रिकॉर्ड, इस इंडेक्स के साथ वो सारा रिकॉर्ड कनेक्टेड है। तो MPIs are used to reduce duplicate patient records and inaccurate patient information that can lead to claim denials. तो ये क्यों ऐसा होता है? एक ही नंबर क्यों दिया गया? जस्ट लाइक अगर आधार कार्ड नंबर, वो एक ही आधार कार्ड होता है ना, क्योंकि डुप्लीकेसी ना हो। अब हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे आधार नंबर के एग्जांपल्स भी ले सकते हो आप इंडेक्स में। तो आधार नंबर, एवरीबडी इज हैविंग एन आधार नंबर, और आधार नंबर से कनेक्टेड होते हैं आपका सारा डेटा, इवन योर आपकी कोई भी चीज, बैंकिंग का सारा स्टेटस ले लो, आपके कोर्सेज का स्टेटस ले लो, आपके कोई भी स्कीम आप पॉलिसी ले रहे हो उसका स्टेटस देख लो, हर जगह पे यू विल आस्क योर आधार नंबर। आप एक टिकट रिजर्वेशन करते हो, फ्लाइट रिजर्वेशन करते हो, तब भी आपको एक आधार नंबर आपसे मांगा जाता है। आधार इज रिलेटेड वो इसलिए क्योंकि एक ही है वो आधार नंबर, उससे आपका सारा रिकॉर्ड है, आप कहाँ गए, क्या करा, कहाँ का रजिस्टर्ड है, कहाँ किए हैं, आज किए हैं, 10 साल पहले आपने क्या किया, एवरीथिंग, राइट। तो उससे क्या होता है, डेटा डुप्लीकेसी नहीं आती, राइट। तो उसी आधार को क्लिक करेंगे तो सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। दो बार एक ही पर्सन के डेटा को रिकॉर्ड करने की फिर वहां पर जरूरत नहीं होगी। और अगर डेटा डुप्लीकेसी आती है तो समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट और हेल्थ की बात अगर करें तो वहां पर डेटा डुप्लीकेसी आती है तो इनएक्यूरेट पेशेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो आगे क्लेम करने पे क्या होता है, दिक्कत आती है। वो हर जगह पर ही आएगी, ठीक है। अगर सपोज मैं एक जगह अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड, और एक जगह कर दूं किसी और कार्ड, कोई और नंबर के थ्रू, तो और दोनों रिकॉर्डेड नहीं है आपस में, अगर जुड़े कनेक्ट नहीं है, तो वो फिर क्या होता है, मिसलीड करता है। तो इसलिए एक ही नंबर यूज करके उसमें सारा रिकॉर्ड किया जाता है जिस तरीके से, वही यहाँ पे मास्टर पेशेंट इंडेक्स का काम करता है, राइट, सो दैट डेटा डुप्लीकेसी ना हो, पेशेंट की डुप्लीकेसी ना हो, और कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आगे मिसलीड ना करे और मिसगाइड ना करे पेशेंट की डायग्नोसिस पे, और कोई क्लेम ना खड़ा हो जाए, राइट। पॉलिसी क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, बहुत सारे क्लेम्स इकट्ठे हो सकते हैं,
तो उसके से बचने के लिए इस तरीके के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, जैसे कि मास्टर पेशेंट इंडेक्स, राइट। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है जिन्हें हमने नाम दिया हुआ है, जैसे क्या पेशेंट पोर्टल, राइट। पेशेंट पोर्टल्स, patient portals allow patients to access their personal health data such as appointments information, medications and lab results over an internet connection. अब पेशेंट पोर्टल अगर आप इस नाम से ही समझ रहे होंगे, एक ऐसा पोर्टल जो पेशेंट के लिए बना हुआ है, ठीक है। उस पोर्टल को आप खोलोगे तो पेशेंट अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकता है, ठीक है, वो देख सकता है अपनी इंफॉर्मेशन और हेल्थ डेटा उसका क्या रहा है अभी तक का रिकॉर्ड, जैसे उसका अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन, सपोज अभी मैंने किसी हॉस्पिटल पे अपॉइंटमेंट किया, ऑनलाइन कर लिया पोर्टल के थ्रू, तो उसका स्टेटस वहाँ पे आप हमें दिख जाता है, ठीक है। मेडिकेशंस क्या क्या हुई थी पिछला, हमने क्या क्या दवाइयाँ उस टाइम पर ली थी जब हमें ये प्रॉब्लम थी, वो भी आप देख सकते हो कि अभी क्या मेडिकेशन हमें प्रोवाइडेड है, वो इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हो अपने पोर्टल से। लैब के रिजल्ट्स आपके पोर्टल में ही आ जाते हैं, अगर आपने कोई टेस्ट करवाया है, पेशेंट ने कोई टेस्ट करवाया है अपॉइंटमेंट्स लेके, उसका लैब जो टेस्ट का रिजल्ट्स होता है वो भी ऑनलाइन पोर्टल में डाल दिया जाता है, वहां से इट कैन चेक, द पेशेंट कैन चेक, ठीक है, ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन, बट नीड्स एन इंटरनेट कनेक्शन मीन्स ऑनलाइन। बिना ये पोर्टल पेशेंट तभी एक्सेस कर पाएगा जब पेशेंट भी ऑनलाइन होगा, देन ओनली द पेशेंट कैन एक्सेस दैट पोर्टल, right? Some patient portals allow active communication with the physicians. कुछ पेशेंट पोर्टल्स ऐसे भी हैं जो उनके फिजिशियन से भी बात करा देते हैं उनकी, और ऑनलाइन उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, राइट। आउट ऑफ इंडिया ऐसे पोर्टल्स बहुत सारे हैं जो कि घर बैठे पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, और यूजुअल हैबिचुअल वे में ऐसा होता है। तो द डायग्नोसिस एट द विद द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ पेशेंट पोर्टल्स, राइट। अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, प्रेस्क्रिप्शंस ले सकते हैं, रिफिल रिक्वेस्ट यहाँ पे हो सकता है, एंड द एबिलिटी टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स, और अपने फर्दर अपॉइंटमेंट को भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये था आपका पेशेंट पोर्टल नाम का सॉफ्टवेयर। तो दीज ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर HMIS इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो वो कुछ भी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेसिफिक नहीं होता, कस्टमाइज्ड होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम एक कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए इंस्टॉल कर रही है, ये सेटअप बना रही है, तो वो कस्टमाइज वे पे बनाती है, सो दैट उसका क्या कर सके, अपना अपना पर्टिकुलर शेड्यूलिंग जो भी सिस्टम्स ने हॉस्पिटल्स ने की हुई है वो कर सकती है, राइट। इसके अलावा कुछ और हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू शेयर यू द स्लाइड। Patient portals we have discussed here. Remote patient monitoring and patient portals are similar, somewhat similar, but the name has given RPM. These are the names of the software. PP, patient portal, name is there, patient portal, right? Remote patient monitoring, also known as टेली हेल्थ, इसे टेली हेल्थ भी बोलते हैं। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग नाम से बना हुआ है ये सॉफ्टवेयर। अलाउज मेडिकल सेंसर्स टू सेंड पेशेंट डेटा टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट को एक तरीके का, ये भी पेशेंट पोर्टल ही है, बट पेशेंट पोर्टल में तो आपने देखा ये सब चीजें हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग का मतलब है, सपोज यू आर अ फिजिशियन और आपके पेशेंट्स हैं, आप जिन्हें डायग्नोज कर रहे हो,
आप जहां पर भी हो वहां से अपने पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हो, राइट। फिजिशियन कहीं पे भी है, आउट ऑफ इंडिया है, गया हुआ है, वहां से वो अपने पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है, राइट। तो वो विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें सेंसर्स भी लगे होते हैं। सेंसर, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है। तो इसमें मेडिकल सेंसर्स अलाउज होते हैं, जिसमें जिसके थ्रू पेशेंट का डेटा सेंड किया जाता है उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, राइट। या फिर आप यहाँ पे इंडिया में बैठ के किसी बाहर के हेल्थ प्रोफेशनल से, अपने फिजिशियन से अपने वो डायग्नोज हो रहा है, तो भी इस तरीके के रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग से ये काम हो जाता है। It frequently monitors blood glucose levels and blood pressure for patients with chronic conditions. ऐसे पेशेंट जो बहुत chronic conditions में होते हैं ना, तो उनका क्या कहे, टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर देख करना है कि भाई अभी ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है, कम हो रहा है। तो यू कांट, फिजिशियन कैन नॉट बी मींस स्टे एट वन प्लेस। तो वो रिमोट से मॉनिटरिंग करता रहेगा कि बीपी हाई हो गया, या कम हो गया, ये क्या लेवल चल रहा है, ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है। तो ही और शी कैन बी मॉनिटर्ड, डायग्नोस कर सकता है डायरेक्टली। The data is used to detect medical events that requires interventions and can possibly become part of a large population health study. तो इस तरीके से क्या हो सकता है, एक लार्ज पॉपुलेशन की हेल्थ स्टडी आराम से हो जाती है कहीं पे भी, रिमोट वे पे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज हियर, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। Clinical decision support system analyze data from various clinical and administrative systems to help healthcare providers make clinical decisions. ये एक तरीके का डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। ये एक तरीके का जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, ठीक है, ये पेशेंट के लिए नहीं है, इट इज फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर, फिजिशियंस, ओनर्स, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वर्क ऑफिशियल लेवल्स के, उनको ही एक हेल्प है जो कि वो आगे क्लिनिकल में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सपोर्ट सिस्टम है। द डेटा कैन हेल्प प्रिपेयर डायग्नोसिस और प्रेडिक्ट मेडिकल इवेंट्स। इससे क्या होगा कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने आने वाले टाइम के डेटा को, डायग्नोस कर सकते हैं जैसे भी कोई इवेंट्स सच एज ड्रग इंटरेक्शन। कोई ड्रग इंटरेक्शन का केस चल रहा है, ठीक है, और काफी पेशेंट्स उसके आ गए हैं, और आप उनको हॉस्पिटल क्या कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है। तो डायग्नोस करने के साथ साथ उस इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर, क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर हैं, डिसीजन लेने में कैसे सपोर्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, टाइम टू टाइम उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिक तरीके की हेल्प होती है, जिसमें पास्ट रिकॉर्ड भी होते हैं कि पहले पास्ट रिकॉर्ड में जब हुए थे तो ऐसे डायग्नोस हुआ था। एक कंपैरेटिव वे में आपको जो है इसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जिससे क्या होता है, कोई भी इसमें डायग्नोस कर रहे हैं फिजिशियन, या आगे उनको डिसीजन लेना है, इस तरीके के केसेस पे हमें आगे क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू करें, वहां पे ये बहुत हेल्प करता है। एक तरीके का टूल है ये, right? It's a kind of tool. The data can help prepare, diagnose or predict medical events, such as drug interaction. These tools filter data and information to help clinical care for individual patients. तो इस तरीके के जो tools है ना, filtered data देते हैं आपको। Filtered data means एक support system देंगे आपको, और उस पे जैसे awareness आती है ना हमारे पास, कुछ सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वार्निंग्स आती है हमारे पास, कुछ इस तरीके के मैसेजेस आते हैं जो हमें डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करते हैं कि अब ऐसे होने वाला है, आप ऐसे कर सकते हो। तो उस तरीके के ये डिसीजन सपोर्टिव सिस्टम्स हैं। जब कुछ ऐसा हो गया कि अलर्ट देना है कि ऐसा हो सकता है, आप ये डिसीजन ले सकते हैं, तो वहां पर ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स काफी हेल्पफुल होते हैं, राइट। उसमें फिल्टर डेटा होता है जो केवल ये बताएगा कि इतने पेशेंट्स से जो इनका बीपी लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, आउट ऑफ दिस इतना बढ़ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। जैसे अभी कोरोना का केस आप ले लो, उस टाइम पे बिल्कुल ही हेल्थ केयर सिस्टम डिफरेंट हो चुका था, क्योंकि केसेस इस तरीके के थे, सबका बॉडी सिस्टम से एक अलग बिहेव कर रहा था। आप जैसे भी उनको डायग्नोस करना शुरू कर रहे थे, तो वो उसके काफी बाद तक भी, राइट। तो अभी तक चल रहा है, स्टिल इनोवेशंस चल रहे हैं कि अभी कैसे हो रहा है, अब इन दवाइयों को यूज कैसे हो रहा है, हार्ट अटैक्स कैसे हो रहे हैं, साइलेंट अटैक्स क्यों आ रहे हैं, अभी भी ये चल रहा है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर सिस्टम वहाँ पे बहुत ही सपोर्टिव है, जो पुराने पास डेटा को भी देखते थे कि पहले, जब इससे पहले के जो पेशेंट्स थे, उनपे अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती थी तो इतने टाइम वो दवाई लेते थे, तो इतने टाइम में ऐसे ऐसे प्रॉपर हो जाता था।
बट अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें ऐसे हो रहा है, तो उससे क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता है हमको, मतलब डिसीजन मेकर्स को, और वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। उस तरीके का फिल्टर्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं इस तरीके के सॉफ्टवेयर, जैसे क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हमने स्टडी करे हैं आज, अभी फ्यू मोर सॉफ्टवेयर आर देयर, वी विल स्टडी टुमारो। वंस हैव इस पे नजर आप डाल के इनको लर्न करना, इनके नेम्स यू हैव टू लर्न, लाइक पेशेंट पोर्टल, रिमोट पेशेंट पोर्टल, मास्टर पेशेंट इंडेक्स, EMR, EHR, CDS, right? So these are the names of the softwares. You will have to ask at the time of your exams ki, name some softwares using in healthcare industries, right? How to manage HMIS softwares, means they are providing such kind of helps, right? So today we will study till here.